तो ज़ीरोधा से स्टार्ट किया था हमने। हम ज़ीरोधा के आई थिंक अभी निखिल कामत ने बताया था ना कि 60,000 कस्टमर्स थे जो ज़ीरोधा के। आई थिंक वी वाज वन ऑफ देम, ओके क्योंकि हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट साइन करके हम बैंगलोर भेजना पड़ता था वो ज़ीरोधा के ऑफिस में। Hi everyone, welcome to another episode of Sip to Success. Today we have with us Shubham. He has been a 3 times founder and he started building products at a very young age of 13 years, I suppose. Yeah. And right now he's building up StockPay, which is a finance company with a touch of gamification added to it. And we'll understand with him himself कि क्या है actually this StockPay about. So welcome Shubham. How this thing came to your mind and क्या-क्या आपके ventures रहे हैं पहले? थैंक यू सो मच ऐसे तो इनवाइट करने के लिए। Thanks. आई एम मोर ऑफ अ क्यूरियस गाय। आई डोंट characterize myself as a founder entrepreneur. अच्छा. I'm just being very curious about everything. I observe a lot. When I started building products, I think I was like 13 years of age at that time. I started learning coding. My dad bought me a laptop, post which I ventured into tech consulting. Okay. So we used to consult early stage, mid stage companies, how to build scalable infrastructure, how to cut cost, how to scale to, let's say, 1 million user base, 10 million user base, and stuff like that. So this was a proper company It or? was a proper company. Okay. That we were doing. So we had clients from like all the tier 1, tier 2 cities, Haryana, Chandigarh, Mumbai, Pune, Bangalore. That was the first, my networking start from that. And what was the name? क्या था नाम? It was called Program Warehouse. Program warehouse. Okay. A technical काफी- layer, right? Yeah. So I was more into coding ना, तो everything was like कि सब कुछ development perspective से रखना था. And then we started a company called SubPay, सब पे. SubPay Technologies. And we were the This first. was when? It was when was my first year of graduation. Okay. Engineering. 2000 मतलब कुछ year something. 2017. अच्छा. SubPay was more on a biometric based offline payments. So we were actually solving identity theft at that time. तो एक क्या हुआ था कि आपने देखा होगा राशन होते हैं दुकानों पे राशन कार्ड होता है ना, उसको एक्सेस करने के लिए जो लेबर्स वगैरह होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन पीपल होते हैं, दे हैव टू पुट देयर बायोमेट्रिक्स इनटू द सिस्टम. Okay. तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैव दैट राशन शॉप. तो मैं वहाँ पर उससे एक बार बात कर रहा था एंड 30 मिनट्स 40 मिनट्स बहुत लंबी लाइन होती है उनकी, जो लोग आते जो हैं लेने के लिए. राशन लेने के लिए लाइन में लगे थे, that is the Exactly. similar system ना? हाँ, तो मैं उस बात कर रहा था अपने फ्रेंड से एंड वन वेरी ओल्ड गाय केम इन एंड उन्होंने ना अपना हाथ रखा सेंसर पे, बट वो वेरीफाई नहीं हुआ क्योंकि क्या होता है लेबर्स के ना हाथ घिस जाते हैं, उनके फिंगरप्रिंट मैच नहीं होते बहुत जल्दी से. एंड मैं ये देख रहा था तो एंड दैट गाय हैज टू गो बैक इन द लाइन एंड आई फेल्ट वेरी बैड अबाउट इट. मतलब इतना घंटा हाँ, वेट वेट करके करने के आया, बाद भी एंड देन पंच इन किया, अब नहीं हुआ. एग्जैक्टली वो नहीं हुआ. सो ये तो बहुत फ्रीक्वेंट होता होगा उन सबके साथ. हाँ, तो हमने नोटिस किया 40 मिनट्स 15 मिनट्स हम लोग बात कर रहे थे, तो आई वाज जस्ट ऑब्जर्विंग देम कि क्या हो रहा है. 5 लोग 6 लोग पीछे जा रहे हैं, फिर वापस आ रहे हैं, यही चल रहा है. उनका स्वेट आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही थी. आई थॉट यार दिस हैज टू बी सॉल्व. मतलब इतना आगे बढ़ रहे हैं तो व्हाई नॉट लेट्स सॉल्व दिस. आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट. सो यू वर देयर एट दैट शॉप यूजुअली ऐसे ही? हाँ, फ्रेंड्स लेटर वैसे नॉर्मली. फ्रेंड, मेरा फ्रेंड की शॉप थी तो मैं ऐसे मिल लेता था उससे जाके. And I didn't know anything about biometrics at that time. I didn't know anything about the राशन वाला ऑपरेशन कैसे होता है. So biometrics में क्या क्या होता है, just to explain? So basically multiple sensors working, helping you understand कि आपके patterns क्या है फिंगरप्रिंट के. मतलब फिंगरप्रिंट हुआ, आइरिस हुआ, आपका palm पैटर्न होता है. We'll come to that. सब पे was solving the palm pattern वाला part. अच्छा. तो क्या हुआ था कि पैंडेमिक आया उस टाइम पे, स्टार्ट हो गया था एंड नो वन वांटेड टू टच एनीथिंग. ओह. So that becomes the second problem for us कि अब हमें चेंज करना पड़ेगा. तो we pivoted to a completely touchless thing. That was the first sensor when we bought it from Italy. Okay. तो वहाँ पे एक फाउंडर फ्रेंड बना रहे थे वो चीज़ and he was very generous enough to give me the device for free. अच्छा, फ्री में And दिया. वो यहाँ पर आया जब एयरपोर्ट में तो कस्टम ने पकड़ लिया उसको. And now the custom call me and said कि 1.5 लाख रुपए लगेगा. का बॉस नहीं है वैसा उतना मेरे पास. तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे आपको, आप वापस ले जाओ. So that founder friend, he called that back, he called the device back and he gave me the blueprints हार्डवेयर के कैसे बना सकते हैं. तो वो डिवाइस था 1.5 लाख का, हम लोगों ने उसको यहाँ बनाया 12,000 रुपये में. अच्छा, इंडिया में बनाने इंडिया में में इतना cost? हाँ 12,000 रुपये लगे थे. We made it. We did our first prototype in Delhi, पटेल नगर, वो राशन शॉप के साथ. अच्छा, उसी के साथ. Then we went to Delhi government, Okay. state government के पास. We said कि okay, we want to do at a full commercial scale. Right? So I think we deployed it around 2 to 3 places
एंड हमें फिर आया था स्टैचू ऑफ यूनिटी. How was the response from the government side when you presented this? थिंग इज कि जो उनके सेंसर्स थे ना वो उनको बहुत महंगे पड़ते थे. तो अच्छा. उन्होंने एक आईरिस वाला स्टार्ट किया था बायोमेट्रिक का, एंड दैट सेंसर वाज अराउंड 65,000 रुपीज. एक सेंसर. एक सेंसर. एंड अच्छा, एक शॉप वो भी को दो government के चाहिए, लिए? वो भी गवर्नमेंट के लिए. अच्छा. और एक शॉप को दो चाहिए सेंसर्स Okay. ऑपरेट करने के लिए. आई वाज जस्ट सीइंग कि इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों जरूरी है, राइट? Right. तो आई मेड अ प्रपोजल. आई सेड कि देखो हम आपको सस्ते में देंगे. आवर सिस्टम इज बेटर एट ऑथेंटिकेशन. 5 सेकंड्स के अंदर हम आपको गारंटी करते हैं कि वो हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा. फिर हमने उसका सेकंड फेज रिलीज करने वाले थे विद यूपीआई. Okay. तो अब यूपीआई में चैलेंज क्या था कि उस टाइम पे यूपीआई इतना फास्ट नहीं था, बहुत स्लो चलता था. अब तो बहुत फास्ट हो गया है. तो वी क्रिएटेड आवर ओन वॉलेट. अच्छा. उसके थ्रू हमने ऑफलाइन पेमेंट्स निकाला. तो आपको Okay. अब फ़ोन नहीं चाहिए, आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, आपको कोई कुछ नहीं, डिवाइस भी नहीं चाहिए. यू जस्ट हैव टू होवर योर हैंड एंड योर पेमेंट गेट तो डिडक्टेड. वो कैसे मैकेनिज्म वर्क करेगा पेमेंट का? हाउ इट विल? सो जो डिवाइस है उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा था कि वो आपके रिकॉर्ड कर लेता है पैटर्न्स को पहले से. ठीक है, आपको फीड करना होता है उसमें. एंड विल गिव यू अ वॉलेट, वर्चुअल वॉलेट, ओके. राइट? उस वॉलेट में पैसे होंगे, आप कहीं से भी डाल सकते हो उसमें, यूपीआई के थ्रू या एनएफटी के थ्रू. एंड वो जैसे ही रजिस्टर होता है, आप हैंड लेके आए, डिवाइस समझ जाएगा कि आप हो. तो वो डिवाइस हमें पर्सनल कैरी हो करना पड़ता है या इज दैट इट वाज अ B2B सिस्टम. ओके? जैसे पॉइंट ऑफ सेल्स होता सो है. लेट्स से कि वो डिवाइस किसी शॉप पर है और उस पे हमने अपना बायोमेट्रिक्स फीड कर दिया है हाँ, एंड नाउ वी आर गुड टू गो. Yeah. अब हम जाएंगे वहाँ पे अपना स्कैन करेंगे एंड दे विल डिटेक्ट. हाँ, इट विल डिडक्ट द अमाउंट जो भी होगा. अच्छा. आपको वेरीफाई भी कर लेगा, डिडक्ट भी कर लेगा. नो इंटरनेट, नो No, फोन, nothing, नथिंग रिक्वायर्ड. from your end. हाँ, But from a merchant side, it is हाँ, required. उधर चाहिए. Right. तो we saw a lot of opportunity. हम हेल्थ केयर की तरफ जा रहे थे बिकॉज मेरे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी हुई थी डैड के रिगार्डिंग, हेल्थ केयर रिगार्डिंग. विल कम टू दैट. इन द मिडल ऑफ इट वी गॉट अ एक्विजिशन ऑफर. अच्छा. I think we were in at second या third year में थे कॉलेज के. Got an offer from a company which is located in US, Houston. So we got an offer. It was a good exit. It was 60-40. 60 cash, 40 royalties. And जब भी वो डिवाइस बनेगा, कमर्शियली होगा, we'll get the royalties. अच्छा, इज इट इन प्रोसेस अभी? It's in process. Okay. They are commercializing it. हमने जब उनको दिया था तो we patented it. अच्छा. So that was the thing. I think तो हो गया होगा process. It's been like few years now. हाँ. Post which we had around 6 to 7 months to figure out what to do next. So I moved forward to lead product at a company. My co-founder moved forward to lead operations at Zolo in Bangalore. अब so all these things were happening. मेरे घर में बहुत सारी financial issues चल रहे थे for like past 3 to 4 years. While building sub पे also, while building stock पे also. ओके. So in the middle of it, my dad fell sick. और वही ब्रेड अर्नर थे घर के. एंड ही कुडंट वर्क, सो उसकी वजह से उन्होंने जॉब छोड़ दी. एंड इट वाज अ लॉन्ग स्टिंट कि उनको डायलिसिस पे ले जाना, हॉस्पिटल, देन एम्प्यूटेशन एंड स्टफ लाइक दैट. सो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन वी गॉट अ फर्स्ट फंडिंग फॉर स्टॉक पे. सो बोथ द प्रीवियस वेंचर्स वर लाइक बूटस्ट्रैप. नाउ आई वांटेड टू बिल्ड अ बिगर कंपनी, राइट? 1,000 crore or 2,000 crore वाला कंपनी. So set with an aim, we raised our first round. And when I got the first confirmation, my dad died. Oh. So I was just signing the document for the funding round, and I got a thing ki my dad is no more. In the next month, we raised another round. Then we raised a round from Motilal Oswal, which is India's one of the brokers, right? So coming to StockPay help you learn and invest in financial asset through a gaming experience. So me and my co-founder always love gaming. We have been a competitive gamer for like a decade. When I say competitive gamer, it's Valorant, Age of Empire, Dota वगैरह पुरानी games. So the passion for finance and gaming was the key to actually create StockPay, using gamification as a way to actually help you invest. क्योंकि हमें क्या था कि हमने जब स्टार्ट की थी अपनी जर्नी 17-16 में probably, it took us 6 months to get started. और हमने जीरोधा से To build StockPay? नो, टू गेट स्टार्टेड इन ट्रेडिंग. अच्छा. तो जीरोधा से स्टार्ट किया था हमने. हम जीरोधा के आई थिंक अभी निखिल कामत ने बताया था ना कि 60,000 कस्टमर्स थे जीरोधा के. आई थिंक वी वर वन ऑफ देम. क्योंकि हम लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट साइन करके हम बैंगलोर भेजना पड़ता था वो जीरोधा के ऑफिस में. हाँ, आई हर्ड कि वो काफी सारे 60 पेजेस का कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता था, 32 the pages. KYC for that. एंड उसमें प्रॉब्लम ये थी कि वो चला जाएगा एक हफ्ते में,
इट टुक 1 वीक क्योंकि शिप रॉकेट वाला जैसी कंपनी आई नहीं थी उस हाँ टाइम पे, हाँ राइट एंड वो आपको वापस रिवर्ट करेंगे ईमेल पे या अच्छा, कोरियर से कि ये okay. गलती है उसमें, अच्छा एंड देन सेंड अगेन, देन सेंड इट अगेन। तो पूरा मंथ महीना, लॉन्ग प्रोसेस हो हाँ जाता होगा एग्जैक्टली। जस्ट सो टू गेट फॉर दिस। मी इट टुक अस अ मंथ, फॉर माय को-फाउंडर इट टुक अस अराउंड 2 वीक्स 2-3 वीक्स, उनको जल्दी हो गया था, मेरा टाइम लगा। So how does it operate like you are adding gamification? मतलब simplest term में अगर बोलना हो तो अगर एक sentence में समझाना हो what exactly is StockPay? Because like you talk about Zerodha है और भी online aggregators है. So what is the difference between them and StockPay? तो आई विल से जितने भी ब्रोकर्स हैं दे आर एट अ पोस्ट इन्वेस्टिंग साइड। ठीक है. व्हेन आई से पोस्ट इन्वेस्टिंग दैट मीन्स दे आर हेल्पिंग यू एक्सेस टू इन्वेस्टमेंट। आप जाते हो, आप ट्रेड करते हो, आपको इक्विटी मिल जाती है। वी आर एट अ प्री इन्वेस्टिंग साइड। Okay. We take all the explorer people, beginner people, come on the platform and practice it. आपकी जो ट्रेडिंग Practice है, the trading. ट्रेडिंग पार्ट, they So practice is it. it a dummy practice or It's a virtual trading game. virtual trading? They virtual trade, they understand the concept and then they move to real investing. ठीक है. तो ब्रोकरिंग में क्या था ना कि पैसा FNO से बनता है, सिंपल, ठीक है. एंड FNO is futures and फ्यूचर options. ऑप्शंस, राइट। सो लेकिन कोई भी जैसे ज़ीरोधा है फॉर एग्जांपल, ग्रो है फॉर एग्जांपल, इनको 10 लोग एक्वायर करने पड़ते हैं टू गेट 2 पीपल फॉर FNO हु आर डूइंग एक्टिव ट्रेडिंग, राइट, FNO Okay. के लिए। Okay. द कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग वन यूजर फॉर ब्रोकर्स इन इंडिया इज अराउंड 900 to 1500 रुपीज, Okay. राइट। उसके बाद भी गारंटी नहीं होती कि कन्वर्ट होगा यूजर ट्रांजैक्शंस में। तो we picked this insight. We thought कि okay, let's solve a model for brokers. Let's give them a user who is informed, who is confident enough, and who has a risk appetite to put his money. Go to the money. And this is solving at a stock पे end. तो एंड में जब आप रियल इन्वेस्टिंग के लिए जाते हो तो वी हैव पार्टनर ब्रोकर्स। तो वी हैव पार्टनर विद अराउंड 15 प्लस ब्रोकर्स इन इंडिया, एंजल वन, HDFC, जितने भी बोलोगे सब है हमारे पास। एंड नाउ वी टेल देम ब्रोकर्स को कि बॉस हमारा जो यूज़र आ रहा है they will trade on your platform, complete the whole KYC, and will be a loyal customer to you. But we will take a revenue share from you whenever that user trade on a platform. Okay. तो स्टॉक पे का बिगर पिक्चर क्या था कि जितना भी आप प्लेटफॉर्म पे जो भी करते हो, either you do learning, either you do playing, or you do real investing. We take the data, we give you a confidence score on the basis of that. अच्छा. ठीक है, तो हमें पता है कि आप के रिस्क पैटर्न कैसे लगते हैं प्लेटफॉर्म पे। नाउ आई कैन टेल यू कि अनुराग, यू आर नॉट फिट फॉर स्टॉक मार्केट बट यू आर फिट फॉर फॉरेक्स, Okay. और यू आर नॉट फिट फॉर फॉरेक्स ऑल्सो, you can do a SIP with us, right? तो making stock पे a holistic destination where you can learn and experience any financial asset in general. So that was a bigger picture for stock पे, Okay. right? And then eventually the PMS, I want to reduce it to, let's say, अभी क्या है कि 50 लाख की लिमिट है PMS पे for any individual, For right? an individual. Individual. I want to democratize this कि a person with 5,000 rupees also, the middle class people in India, they can start their PMS journey from 5,000 to 10,000, Okay. right? So we are now solving that problem. But don't you think कि SIPs जो होता है, they are also mostly similar to this kind of a thing? So बहुत ना एक simple lining है दोनों के बीच में। तो when people say mutual fund and PMS, they are equal the same. दोनों को fund managers होते हैं, manage करते हैं fund, right? म्यूचुअल फंड में ना आपको रीबैलेंसिंग जो होता है फंड मैनेजर करता है वो आपका, तो लेकिन इसमें कोई गारंटी नहीं होती कि आपको रिटर्न कितना मिलेगा, राइट? ठीक है. एंड नाउ यू हैव टू पिक अ म्यूचुअल फंड आल्सो। उसका एग्जिट लोड देखना होगा, उसकी परफॉर्मेंस देखनी होगी, राइट? यू हैव टू डू द होल एनालिसिस। हाँ. PMS डजंट इन्वॉल्व ऑल ऑफ दैट। आप एक बंदे को पैसे देते हो कि भाई मुझे 10% चाहिए महीने का, तो मुझे ला के दे, राइट? आपको कुछ नहीं करना, तो बंदा ही देखेगा कि उसको स्टॉक्स में डालना है, रियल एस्टेट्स में डालना है, कहाँ डालना है पैसे को। So that is a silver lining between mutual fund and PMS. Okay. Right. Non-technical analysis इधर आओ PMS के लिए, जिसको एनालिसिस करना अच्छा लगता है म्यूचुअल फंड में चलो। So how does gamification is involved in this StockPay? Like अगर मेरे को ट्रेड करना है, I log in to StockPay, मैंने एक बार virtual dummy trading किया, and now your system says कि I am good with the equity investment. Yeah. Then I want to go to the So StockPay is a category defining product, if I say. When I say category defining, it means कि हमारे पास पिछला relevance नहीं है। पिछला StockPay as in जैसा कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है पीछे। अच्छा. जैसे हम अगर मुझे फूड डिलीवरी ऐप बनानी है तो मेरे पास जोमेटो है, ठीक है. मैं उसका रेलेवेंस ले सकता हूँ, फूड पांडा का ले सकता हूँ, किसी का भी ले सकता हूँ। अगर मुझे राइड हेलिंग ऐप बनानी है तो मैं ऊबर ओला का ले लूँगा। फॉर StockPay इट इज़ अ न्यू प्रोडक्ट एंड पीपल परसीव इट एज अ न्यू प्रोडक्ट। But there are many these dummy trading softwares or सब I assume कि जिसमें you can do the
not real trading, but some dummy trading with some dummy money. इट्स कॉल्ड पेपर ट्रेडिंग. Paper trading, right? पेपर ट्रेडिंग में वाज वेरी लोनली. अच्छा. आपको वर्चुअल बैलेंस मिलता है एंड आप एसेंशियली आप अनलिमिटेड टाइम तक प्ले कर सकते हो उसमें ठीक है. विदाउट एनीवन असाइड यू, राइट. Okay. तो मतलब अब हमें क्या करना था, स्टॉक पे के अंदर आपको रियल एक्सपीरियंस देना था कि मार्केट्स कैसे वर्क करते हैं. एंड मार्केट्स ऑल अबाउट टाइमिंग द मार्केट्स विद अदर पीपल, राइट. अगर कुछ किसी ने लेट्स से 100 करोड़ का बाय कर लिया तो मार्केट हिल जाएगा, या सेल कर दिया तो मार्केट हिल जाएगा, राइट. वी वांट टू गिव दैट एक्सपीरियंस एंड दैट्स व्हाई वी क्रिएटेड पेपर ट्रेडिंग. लिया उसका वर्जन 2 क्रिएट किया हमने, दैट यू विल ट्रेड विद अदर पीपल अराउंड, Okay. जो आपके सेम लेवल पे होंगे. Well, too many people trading simultaneously, but in a artificial setup. आर्टिफिशियल वे. सो दे विल नॉट लूज एनी मनी, बट दे विल गेट अ चांस कि ओके रियल टाइम Sense मार्केट of में कैसे होता है. real. एग्जैक्टली. वो will. So the data we also get is from NSE feeds. तो जो रियल टाइम मार्केट का डेटा होगा सेम स्टॉक पे के लिए भी होता है वही चीज, राइट. So how many these paper traders or these dummy traders do you have trading at a set time, like? On a month basis we do around 2 lakh users. Okay. Yeah. Gamification has a framework called Octalysis. Okay. Octalysis क्या होता है? Octalysis framework में क्या होता है कि so gamification is essentially helping you motivate. Human focus design होता है, ठीक है. ठीक है. आपके कोर ट्रिगर्स होंगे जैसे अवॉइडेंस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी, इमोशन, आपको हैप्पीनेस आती है किसी चीज़ से, राइट. तो ऑल दीज ट्रिगर्स आर ऑलरेडी इन अ लॉट ऑफ एप्स. इफ यू सी फेसबुक इज ऑल्सो गेमिफाइड इन अ वे. Okay. एंड ऑक्टालिसिस में 4 लेवल होते हैं, लेवल 1 2 3 4. तो फेसबुक माइट बी ऑन लेवल 4. Okay. लेवल 1 और 2 में क्या आता है, आपका एनिमेशन, लीडर बोर्ड, कलरफुल चीज़ें, राइट. सब ये सब चीज़ें होते हैं. बट ट्विटर वगैरह पे जाओ, जितने भी मास प्रोडक्ट्स बने ना अभी तक, दे आर ऑल गेमिफाइड इन अ वे, Okay. right. So probably stock is on a level 1 or 2 right now because we have leaderboard, we have points, we have all the ringing bell वाले sound सब कुछ है. But we are moving to level 4 जहाँ पर हम आपके core motivators जो होते हैं humans के, उसको trigger करते हैं, Okay. right. So for example anything related to let's say अगला level क्या होगा, it's unpredictability, right. That is a part of gamification. Then probably मैंने streaks डाला, जैसे Snapchat में streak होता है ना, Snapchat is also gamified. Okay. तो इट ट्रिगर्स योर अवॉइडेंस पार्ट कि ये तो मुझे अवॉइड करना है, टूटनी नहीं चाहिए, राइट. देन देयर इज अ ट्रिगर ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस. आपके फ्रेंड्स हैं साथ में, राइट. एक कहता है स्कार्सिटी Okay. कि टाइमर लगा हुआ है, इसी टाइमर के अंदर मुझे ये काम करना है, राइट. तो वी स्टार्टेड फ्रॉम वेरी इनिशियल गेमिफिकेशन कि ओके विल गिव यू लीडर बोर्ड, विल गिव यू अ सोशल इन्फ्लुएंस, आपके फ्रेंड्स होंगे साथ में, एंड विल गिव यू अ स्टेटस कि आप कुछ अचीव कर रहे हो लाइफ में. We started with these 3 triggers, and there are total 8 triggers that we have to work on. Right? अभी 8 और 8 total 8 है. अच्छा, उसमें 3 से तक you कर लिया have हमने. 3 कर लिया. हाँ, अभी we are working on 4, 5 and 6 ऐसे करके we are moving on. So gamification started with it's same as saying कि games के element लिए and उसको real world scenario में डाल दिया. अच्छा. So they are not real games or something with that attached. No. The triggers behind उसको we are using as a gamification word. So gamification as a word भी इसलिए निकला था क्योंकि गेमिंग कंपनी ने सबसे पहले मोटिवेटर्स निकाले थे. अच्छा. So that's how gamification it turned out. कि गेमिंग कंपनी करती है तो gamification है. अच्छा. अगर किसी और ने निकाला होता तो probably the name has been changed. अच्छा. Okay. So is it not there कि कोई कस्टमर आया स्टॉक पे and he is doing the virtual trading and when the time is कि he is shifting to actual trading, then he might not go with your platform and they see कि अगर मुझे कोई भी for example XYZ brokerage company के थ्रू जाना है and why not go and create a separate account so that is it something कि उसको कुछ monetary benefits मिलेगा while the charges that जो stock पे को पे करेगा. So it works on 2 things if I see. जैसे कि जो भी अगर यूज़र जा रहा है, लेट्स सपोज आपके पास आपको लगता है ग्रो अच्छा है एज अ प्लेटफॉर्म, राइट. तो आप स्टॉक पे के थ्रू ग्रो पे जा सकते हो सीधा इन्वेस्ट करने के लिए, राइट. आप इन्वेस्ट उनके प्लेटफॉर्म पे कर रहे हो, सब कुछ उनके प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, रेवेन्यू शेयर हमें मिल रहा है वहाँ से, राइट. So वो रेवेन्यू शेयर कौन बेयर करता है जो आपको मिलता है? ब्रोकर्स का. कस्टमर को कस्टमर को कुछ नहीं करना. ओके. तो लेट्स सपोज ग्रो ने बहुत पैसा लगाया, ब्रांडिंग करी, ये सब किया, उसने एक इमेज बना ली कि सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म ग्रो है. ओके. मेरा काम है ग्रो को इन्फॉर्म्ड और एजुकेटेड यूजर को प्रोवाइड करना, राइट. एंड एज अ पर्सन यू ऑल्सो वांट कि मैं अब इन्वेस्टिंग कर पाऊँ, राइट. तो हम दोनों, हम यूजर साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं, हम ब्रोकरिंग साइड को भी सॉल्व कर लेते हैं चीज़ करके, राइट. अब सेकंड आता है कि द लॉन्ग टर्म लुक्स लाइक कि वी हैव टू इंटीग्रेट इन्वेस्टमेंट टू अस. तो नाउ वी आर इन टॉक्स विद ब्रोकर्स कि आप अपनी API दो,
अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो दूँ एंड विल इंटीग्रेट इन टू स्टॉक पे so that user don't have to go to anywhere else. They can just trade from our platform only simultaneously. But that's a phase 2 that looks like it will come in probably next year, Q1. Okay, you're working on Yeah, that. we are working on that. How do you think market for this investing in India is? Because अगर percentage की बात करें, so I suppose some 2-3% of the India's population is actively involved in stock trading. And as compared to the US, it's like US में some 40-42% must be Yeah. investing in this. 60% So out there. बहुत बड़ा gap है. So as an industry expert, what do you think are the challenges and why not more people are coming to this investing thing? Because एक reason है ठीक है हर किसी को समझ में नहीं आता है. But there are still I have known people who are well researched, well educated and they understand the market, but still they don't go into this thinking कि I मतलब बहुत ही वेग रीजन होता है कि आई डोंट वांट टू डू दिस आई विल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट मैं या कुछ और कर दूंगा आई विल इन्वेस्ट इन गोल्ड बट नॉट पर्टिकुलरली इन स्टॉक एक्सचेंज I think so. Interesting thing is कि इंडिया परसीव हमेशा से करता है फिजिकल एसेट्स को सिक्योर. दे इन्वेस्ट इन गोल्ड, दे इन्वेस्ट इन सिल्वर, रियल एस्टेट स्टफ लाइक दैट. क्यों? क्योंकि एक तो रियल टाइम इन्वॉल्वमेंट नहीं है, राइट? एंड it's sure that will give you stable returns over the longer period of time, right? So we, as a country, Asians in general have these think कि वो risk averse होते हैं. थोड़ा एफडी का Exactly. सिनेरियो टाइप Stable investment का. मेंटली रहता है क्योंकि ना स्टॉक मार्केट इफ यू सी अभी 2020 से पिकअप करना स्टार्ट किया है. सबके पास बहुत फ्री टाइम था, सब लोग इन्वेस्ट थोड़ा बहुत पैसा कमाना चाहते थे, अर्न करना चाहते थे. एवरीवन स्टार्टेड इन्वेस्टिंग. माय मॉम बॉट अ एनएफटी और अपने आप से. अपने आप अब वो चल नहीं रहा, मैंने कहा जा रहा है. देन शी स्टार्टेड इन्वेस्टिंग टू बिटकॉइन. वो भी लॉस में चल रहा है. आई डिडंट नो अबाउट दिस ऑल ऑफ दिस, राइट? one day she came to me and said कि मेरा इतना चल रहा है, बता इसका क्या करूँ. देखो मुझे थोड़ा ना पता है आपने इन्वेस्ट किया है और कब किया था. So now we are seeing that people have started to realize कि financial literacy is important, right? US में it's a part of the curriculum, right? ठीक है. और इंडिया में टैबू ऑलरेडी है कि पहले तो घर वाले बात नहीं करते पैसों के बारे में, राइट? मैं कितना कमा रहा हूँ, मेरी बहनें कितना कमा रही है, राइट? डैड कितना कमा रहे हैं. So having those conversation at home is very important. So I started doing that at my level, right? And we believe कि so मैं हमेशा अपनी टीम को भी कहता हूँ कि जैसे कंप्यूटर आए थे ना, तो स्कूल्स में क्या होता था, कंप्यूटर की लैब होती थी पहले, राइट? एंड स्कूल ना चार्ज करता था कंप्यूटर लैब के लिए एडिशनली. तो पेरेंट्स बोलते थे कि यार मैं क्यों एक्स्ट्रा दूँ इस चीज़ के पैसे, राइट? फीस में क्यों स्कूल में भेज रहे हैं. एग्जैक्टली. तो वी सी कि फाइनेंशियल लिटरेसी इज एट दैट पॉइंट. पीपल डोंट रियलाइज कि इंपॉर्टेंट है, बट ओवर द ईयर दे विल से कि भाई तू पैसे ले ले, मेरे बच्चे को पढ़ा दे, बच्चे को पढ़ा, राइट? सो नाउ वी आर इन टॉक्स विद लाइक IIMs, ISBs to integrate a curriculum for gamified finance learning into them, right? Giving them a product, and we are seeing a massive response from their side because NEP आया था, which is National Education Policy. तो इसमें कहा है कि interactive curriculum and mathematical curriculum has to be promoted in schools and both in colleges. So now every college, every school wants कि we want to be the one. कि हमें integrate करना है, हमें लाना है पहला. Now we are started working with that. Now we see कि okay, over the 5 years if I say, इतनी जल्दी तो नहीं आने वाला change, but 5 साल में we'll see a significant change in people coming to equities. Intraday में भी equities में आने लग जाएंगे. Right. And then probably 5 years more to go into intraday and FNO. Yes. That's how people will evolve. जो कंपेयर करते हैं जैसे 4% है अभी जो लोग इक्विटीज में करते हैं इन्वेस्ट, उधर तो 60% चल रहा है यूएस में. विल सी कि बढ़ेगा बट इट विल गो टू अराउंड 15% और 20% मैक्स. कंपनी लाइक अस आर helping people to transform, right? So we are essentially creating the market for people now. Okay. Right? क्योंकि ब्रोकर्स का मार्केट तो 4% ही है, सब लोग उसी को टारगेट कर रहे हैं, राइट? आपके पास 4 ब्रोकर आएंगे, बोलेंगे मेरे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ. स्टॉक पे के लिए मैं एक नया यूज़र ला रहा हूँ बिल्कुल अलग खाली मार्केट में से. 95% पीपल इफ आई से एंड आई एम सेइंग कि आ तू इंगेज कर एंड गो टू अ ब्रोकर और स्टार्ट इन्वेस्टिंग. दैट्स व्हाई ब्रोकर पार्टनर विद अस, क्योंकि दे नो कि वो 4% मार्केट इज़ वेरी कट थ्रोट. मार्जिन्स नहीं बचे बिजनेस में, खत्म हो रहा है बिजनेस एंड एवरी ब्रोकर शेयर इज डिक्लाइनिंग. इवन यू सी प्रॉफिट्स हो रहे हैं सबके, इवन जीरोधा ऑल्सो. बट इफ यू सी 5 years का जीरोधा का चार्ट, यू विल सी इट्स अ डिक्लाइन. इवन मोतीलाल, इवन HDFC, इवन कोटक. So how does कि profits increase हो रहे हैं but the user base is declining? लाइफ टाइम वैल्यू बढ़ रही है कस्टमर. Okay. अब जैसे हमारे प्लेटफॉर्म पे हमने ये चीज़ देखी है, एक यूज़र आया 5,000 रुपये लगाए, बढ़ा के 50,000 किया, करके 1 लाख कर दिया, राइट? तो वो ट्रस्ट जैसे इस्टेब्लिश हो जाता है ना. और पेमेंट्स ऐसा बिजनेस है कि
आप देखोगे कि पेमेंट स्क्रीन पे लिखा होता है कि ट्रस्टेड बाय इतने इंडियंस, हाँ, राइट राइट? तो आपने 1 रुपये डाला, या इवन आप देखते हो क्रेडिट कार्ड आपके में 1 रुपये डालते हैं या 1 रुपये डिडक्ट करते हैं, वो पॉइंट ही यही है कि आपको ट्रस्ट बैठाना है कि इसने 1 रुपये की ट्रांजेक्शन सक्सेसफुली कर दी, कर दिया. राइट? और वो जब एक बार इस्टेब्लिश हो जाता है, नाउ यू कंटिन्यू कीप डूइंग दैट बिहेवियर ओवर एंड ओवर अगेन. Okay. So this gamification, like हम जो बात कर रहे हैं, like I am also building up a world's first marketplace exclusively for tea and coffee. So this is like a single platform where a consumer can discover the content centered around tea and coffee. They can see what brands are available. They can share these brands available within the existing buyers or the communities or the friend circles that we have, and they can buy from this platform itself. अच्छा. So it is a singular platform where you don't need a search engine to see what kind of tea they need, and they're going to another platform to compare the different varieties available and then maybe buying from a third app. So everything would be in a singular platform. So how we can add a process of gamification or something of that sort, which will motivate consumers to buy and be associated with our platform. So I was advising this one company based out of Gurgaon. So what they do is वो बच्चों से रिलेटेड चीज़ बना रहे हैं, पेरेंटल गाइडेंस कुछ करके, एंड दे वांटेड कि जो बच्चे होते हैं वो अपना स्क्रीन जो टाइम होता है वो कम कर दें. तो दे वांटेड टू यूज गेमिफिकेशन टू दैट. सो इंटरेस्टिंगली इट्स बीन लाइक 2 years ऑपरेटिंग स्टॉक पे, राइट? एंड गेमिफिकेशन इज नॉट समथिंग कि आप जस्ट उठाओ और डाल दो, हाँ, right. right? It's a iterative process. हाँ, हाँ. तो आई ऑलवेज से आस्क्ड वन थिंग कि व्हाट यू वांटेड टू सॉल्व. सो गेमिफिकेशन में आप या तो डिस्कवरी सॉल्व कर रहे हो, जैसे कि लोग जाने आपके प्लेटफॉर्म को आके पहले तो, राइट? Right. तो यू कैन सॉल्व डिस्कवरी थ्रू गेमिफिकेशन यूजिंग ब्रांड का कंटेंट वगैरह उसमें भी हो जाता है. सेकंड इज आप ऑनबोर्डिंग सॉल्व कर रहे हो कि चलो लोग तो आ रहे हैं, इंस्टॉल तो कर रहे हैं, बट साइन अप नहीं कर रहे हैं. Right. तो अब उसमें कैसे ऐड कर सकते हो? प्रॉब्ली आप उनको माइलस्टोन दे दो कि बॉस आप आ गए हो, अब आप साइन अप करोगे तो आपको कॉइन मिलेगा. Okay. कॉइन डजंट हैव टू बी अ वैल्यू, Value. कुछ जरूरी नहीं है, बट वो आपको सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट देगा, अगेन अ ट्रिगर हाँ. इन Yeah, I गेमिफिकेशन, have राइट? this much points. एग्जैक्टली. और गिविंग देम अ रिवॉर्ड कि ओके यू आर 100 पीपल आउट ऑफ 1 lakh जो इतनी जर्नी कंप्लीट कर चुके हैं. Okay. अकम्पलिशमेंट अगेन. Accomplishment. तो आपने ऑनबोर्डिंग सॉल्व कर ली, यू विल हैव अ हायर कन्वर्जन रेट. नाउ टॉकिंग अबाउट द मेन कोर गोल. अब उसमें आता है कि आप कोर फीचर सेट को ऑप्टिमाइज करना है. लेट्स सपोज इट कैन बी Purchase. परचेज, राइट? तो परचेज में आप लगा सकते हो कि डू दीज 3 ऑब्जेक्टिव्स इन ऑर्डर टू बाय समथिंग, Buy something. राइट? तो अगेन लोगों को बहुत अच्छा लगता है कि जब आप उनको टास्क देते हो. तो ऐसी योर प्लेटफॉर्म इट्स कॉल्ड Brews and roast. तो अगेन अ कैटेगरी डिफाइंड प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट, राइट? तो पीपल लाइक इट कि उनको कुछ गोल्स मिले, कुछ माइलस्टोन मिले कि वो कंप्लीट कर पाए, एक जर्नी मिले, राइट? तो जैसे इंडिया में है, सब लोग कुछ नहीं पता क्या करना आगे लाइफ में, राइट? एवरीवन थिंक लाइक दैट. Right. बट इफ यू गिव दैट पर्सन अ चांस और अ होप कि तुझे मैं उठा के स्टार बना दूंगा, राइट? ही विल फॉलो यू. दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इन गेमिफिकेशन आल्सो. यू हैव टू गिव देम अ प्रोग्रेशन जर्नी. कि आज तूने 3 चीजें ये करी, 4 चीजें ये करी, अब तुझे ये रिवॉर्ड मिला. ठीक है. रिवॉर्ड कैन बी सोशल, बैच दे दिया, हाँ. शेयर करने के लिए कुछ That दे they दिया. can share with Exactly. PUBG ने बहुत अच्छा किया था शेयरिंग का, कि चिकन डिनर, राइट? तो यू कैन इम्प्लीमेंट दैट थिंग. Right. एंड देन फाइनल इज रेफरल. Okay. तो रेफरल में आप क्या कर सकते हो? सो हमारे में क्या होता है कि अगेन माइलस्टोन बेसिस है, वी शो देम. इसमें ना विजुअलाइज कराना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्लेटफॉर्म में कि यूज़र की जर्नी अभी क्या है और आगे क्या रहेगी. तो हमारे रेफरल प्रोग्राम में वी शो देम कि ओके अगर 8 लोगों को रेफर किया तो इतना कॉइन मिलेगा आपको, इतने कॉइन वेटिंग है आपके लिए, Okay. राइट? एंड देन विल टेल यू कि आपने लेट्स से 2 लोगों को किया, अनुराग को किया और किसी को किया, एंड उन लोगों ने रजिस्टर नहीं किया प्लेटफॉर्म पे, तो हम उनको ऑप्शन देते हैं कि रिमाइंड करने का, Okay. राइट? जैसे ही वो करते हैं रिमाइंड, उनके बाद नोटिफिकेशन जाती है एंड देन दे कंप्लीट द जर्नी. They complete that. लिंकिंग एवरीथिंग इन ऑर्डर टू हेल्प देम गेन समथिंग, राइट? तो वो एक एक करके ट्रिगर जैसे जैसे प्लेटफॉर्म में आएंगे, इट विल कंप्लीट द होल गेमिफिकेशन पार्ट. Nice. So let's talk about you. Where you are born. थोड़ा अपने बारे में शेयर कर रहे हो. I come from very humble middle class background. As I told you, I have like 2 elder sisters. Okay. Mother is a housewife and dad used to be a sole earner. And I was very curious, let's say again. तो मैं जब छोटा था तो मैं जा जाके कार्स के सामने खड़ा रहता था
एंड मैकेनिक्स जो होते थे वो उनका बोनेट खोल के यूज टू वर्क राइट एंड आई क्वेश्चन माई डैड कि ये क्यों कर रहे हैं राइट, ट्रेन चल रही है ट्रेन क्यों चलती है राइट, प्लेन उड़ रहा था प्लेन क्यों उड़ता है, कैसे उड़ रहा है. सो So what was the product that you developed at, I guess, 13 years of age? yeah, so it was a fees management software for my school. Acha. तो Again a tech again a based. tech based product. Okay. So it everything in my life started from tech only. I started soldering things. Toys होते हैं ना रिमोट वाले, हाँ. मैं उनको सोल्डर करता था, दोस्तों को बेचता था, पैसे मिलते थे, खुश रहता था उसमें. एंड And you were a engineering student. हाँ, इंजीनियरिंग स्टूडेंट. वो इंजीनियरिंग बाय चांस ही हुई बिकॉज आई रियली वांटेड टू गो इनटू कंप्यूटर साइंस राइट, डेवलप करना था अगेन कुछ. तो स्टार्ट माई जर्नी विद दिस, अ वेरी स्मॉल बिजनेस राइट, सर्किट बोर्ड जोड़ना, देन वेंट टू सॉल्विंग फॉर लैपटॉप्स और प्रिंटर्स वगैरह. तो उनकी कार्ट्रेज होती है, तो मैं उसको 60 रुपये में लेके आता था नेहरू प्लेस से, और मैं बेचता था 100-200 रुपये की राइट, खुद फिक्स करके. लैपटॉप सही कर लेता था. Okay. ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती थी लैपटॉप्स और कंप्यूटर्स में. पीपल फाइंड इट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है राइट, तो उसमें पैसा कमा लिया. पोस्ट विच आई स्टार्ट माई वेंचर कंसल्टिंग वाला पार्ट राइट, बिकॉज आई फाइंड इट गुड. इन स्कूल, इन द मिडल ऑफ स्कूल, आई वॉज अ बैक बेंचर. ठीक है, अच्छा. डिडंट वांट टू स्टडी बिकॉज आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मल एजुकेशन, क्योंकि बहुत बोरिंग रहता है, प्रैक्टिकल कुछ नहीं है राइट. एंड जो पढ़ा रहे हैं, इवन जो कॉलेज में पढ़ा रहे थे वो मैंने 13-14 में पढ़ लिया था, खुद ही कर लिया था. तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मेरे मार्क्स फॉल होने लगे राइट. आई वाज इन साइंस ले ली थी. अच्छा. तो आई मेड अ डील विद माई प्रिंसिपल सेइंग कि योर वेबसाइट लुक लाइक शिट, आई विल रिवैम्प इट फॉर फ्री, जस्ट पास मी. 11th में आप पास करता. और मेरी मैथ्स बहुत बेकार थी उस टाइम पे. Okay. तो मैंने पूरा 6 महीने आई डिडंट वेंट टू क्लास. तो प्रिंसिपल कन्विंस हो गए थे? हाँ. तो क्या हुआ था कि आई यूज टू सेल, बोले थे कौन से सॉफ्टवेयर होता है, पायरेट सॉफ्टवेयर होते हैं जो क्रैक करके उनको. Okay. तो उनकी वेबसाइट बनाई थी जो मैंने. सीडीज पहले आती थी. हाँ, सीरीज पहले आती थी. उनको मैंने वेबसाइट पे डाल दिया था, अपनी बना के वेबसाइट, और मैं उनको वहाँ से बेचता So था. you created a website और उस पे वो सॉफ्टवेयर डालते थे. वो वहाँ से चल रहा था. अच्छा. इवेंचुअली वो स्कूल में चला गया, स्कूल में पता चल गया किसी को मैं ये करता हूँ. Okay. एंड दैट वेंट टू द प्रिंसिपल. अच्छा. एंड प्रिंसिपल कॉल्ड मी. उन्होंने देखा कि ये कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारी वेबसाइट खराब है. मैं कहा वेबसाइट बना दूंगा, बट आई हैव टू गेट समथिंग आउट ऑफ इट राइट. अब पैसे मत देना, उनको पास कर देना. पैसे मत देना, बट जस्ट पुश मी. मैंने ऐसे बोला था कि पुश मी इनटू द नेक्स्ट क्लास. तो लगा कि ठीक है देखेंगे. 6 months वेबसाइट तो 3 दिन में बन गई थी. रिसेप्शन पे जाके मैं बैठता था, घर से लैपटॉप लेके आता था अपने बैग में. बुक्स नहीं होती थी मेरे बैग में, लैपटॉप था. अच्छा. मैं अपनी टीचर को शक्ल दिखाता था कि मैं जा रहा हूँ सर के पास, और मैं रिसेप्शन में बैठा रहता था. एंड वी यूज टू गेट फ्री अनलिमिटेड वाईफाई ओवर देयर. सो वेबसाइट 3 दिन में बन गई, क्योंकि घर जाके बना लेता था मैं. अब 6 महीने मैंने गेम्स डाउनलोड करी, मूवीज डाउनलोड करी, पिक्चर देखी पूरा, और अपने 2 फ्रेंड्स को बुला लिया कि मुझे हेल्प चाहिए इनकी. अच्छा. ये भी अच्छे हैं कंप्यूटर में, एंड दे न्यू नथिंग अबाउट कंप्यूटर एंड स्टफ लाइक दैट. एंड ओवर टाइम, सो 6 महीने वेबसाइट बनी. प्रिंसिपल को बाद में पता था ऐसा कुछ? सो हमारी एक मैम थी कंप्यूटर वाली, एंड उनको पता था कि कुछ तो करते हैं, कोडिंग तो नहीं कर रहे. कोडिंग नहीं कर रहे, बट कुछ और हाँ, कर कुछ तो कर रहे हैं. एंड वन टाइम प्रिंसिपल केम इन द रिसेप्शन एंड ही सेड कि यार वाईफाई नहीं चल रहा, क्या हो गया. और फिर उन्होंने चेक किया तो वाईफाई का पूरा लिमिट खत्म हो गया था. ओके. और उन्होंने कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं ऐसा कि खत्म हो गया, पहले तो खत्म नहीं होता था. तो मैम केम टू मी एंड सेड शिवम क्या कर रहे हो. मैंने कहा मैम देखो यही कर रहा था ऐसा ऐसा. तो मैम ने हमें बचा लिया. मैंने कहा कि सर बहुत सारे कंप्यूटर्स चल रहे हैं, प्रॉब्लम इसकी वजह से ओवर हो गया होगा. देन लेटर जब प्रिंसिपल चले गए, मैम आई तो वो कह रही सच सच बताओ क्या कर रहे थे. मैंने कहा हम थैंक यू बचाने के लिए, देखो हम गेम डाउनलोड कर रहे थे, हमने वेबसाइट बना ली है. कह रही ठीक है. हाँ, कह रही मुझे मत फंसा देना बस तुम लोग. मैंने कहा ओके. देन पोस्ट विच वेबसाइट वॉज कम्प्लीटेड, ही टोल्ड मी कि और क्या बना सकते हो. हमने कहा योर फीस मैनेजमेंट लुक वियर्ड, आउट ऑफ ये सब स्कूल का ही है? स्कूल का ही पार्ट है. कौन सा स्कूल था आपका? आदर्श स्कूल, कीर्तिनगर में. कीर्तिनगर. Yeah, again a very normal decent type of school, not a IV वाला, DPS वगैरह नहीं था. पोस्ट विच स्कूल कॉलेज में हम लोग पार्टीज ऑर्गेनाइज करवाने लगे, क्योंकि क्या होता था हमारा Tier 3 कॉलेज था. एंड मोस्ट ऑफ द किड्स दे यूज टू कम फ्रॉम जो भी सिटीज होते हैं आपकी यूपी वगैरह, ऐसे छोटे छोटे शहरों से आते थे. एंड उनका सबका एम होता था कि दिल्ली की लाइफस्टाइल जीनी है राइट. तो आई पिक दैट, आई थॉट कि ओके आई विल गिव यू द लाइफस्टाइल एंड आई विल चार्ज यू फॉर इट. तो उसमें हमने अपनी पहली पार्टी ऑर्गेनाइज की थी एंड अराउंड 120 पीपल शोड अप राइट. सो ये कॉलेज की ही थे सब? हाँ, कॉलेज के थे. Okay. हमारे में ना कोई वो नहीं होती थी, पार्टीज वगैरह कुछ नहीं होती थी. अच्छा. एंड होल माहौल ऐसा था वियर्ड टाइप्स का. तो आई थॉट कि ओके लेट्स डू फॉर इट बीटेक के लिए, क्योंकि बीटेक सबसे बड़ा ब्रांच था वहाँ पर.
तो हमने पोस्टर लगाने स्टार्ट किए विद माय नेम ऑन इट। हमने कहा देखी जाएगी क्या होगा, क्या होता इन्वेस्टिगेट हो जाएंगे ऐसा था। एंड अच्छा, this was not with the no, permission no, of no, the no, nothing. It's college. unofficial. Okay. So the name of the parties and the clubs also unofficial. This party, unofficial that party. ऐसे करके. Okay. And there were like 4 people name on it. My and जो 3 मेरे दोस्त थे उनके. We did that. 100 people showed up in first party, and we made a good money. Second, we did a trip to Manali, Okay. then Goa, then your Mumbai. So ये सब कुछ जो वेबसाइट that you were working on उसी के थ्रू हो रहा था. हाँ उसी के थ्रू हो रहा था। एंड देन वेबसाइट वाला बंद हो गया Okay. क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता था, तो आई वाज लाइक कि छोड़ो डिस्कार्ड करते हैं इसको। एंड देन आई स्टार्टेड डूइंग दिस। तो इससे क्या हुआ था, इतना कमा लिया था कि आई थिंक सेकंड थर्ड ईयर की फीस मैंने खुद दी थी कॉलेज की। अच्छा, द फीस वाज लाइक 2 लाख। Okay. तो दैट वाज लाइक हैपनिंग ऑल द थिंग। आई वाज वेरी क्यूरियस कि ओके लेट्स गो टू टेक इवेंट। So you were doing this alone और कुछ फ्रेंड्स भी थे साथ में? मोस्टली आई वाज डूइंग इट अलोन, द होल स्ट्रैटेजाइजिंग पार्ट, एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। बट जब जैसे इवेंट हो रहा है फॉर एग्जांपल 100 पीपल शोड अप, देन आई वांट मैनेजमेंट पीपल, राइट? तो दोस्तों को बुला लिया कि आई विल गिव यू अ कट, Okay. जस्ट मैनेज दीस पीपल्स, राइट? सो ऐसा हो जाता था कि आई यूज्ड टू थ्रो पीपल आउट। अच्छा. मतलब दे गेट ड्रंक एंड ऑल दैट स्टफ, सो आई यूज्ड टू पिक देम अप, पुट देम इनटू कार, सेंड देम होम, विश की सब सही है ऐसे करके। एंड वन टाइम माय कॉलेज उनको पता चल गया। सो आई स्टिल रिमेंबर कि मेरे सारे फ्रेंड्स थे वो प्रमोट हो गए थे सेकेंड ईयर में, एंड आई वाज द वन जो दिसंबर तक फर्स्ट ईयर में था। अच्छा, because you were हाँ, आई वाज डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। Okay. सो आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन कि अटेंडेंस बढ़वाना, Okay. राइट? देन मैथ्स मतलब मार्कशीट में नंबर बढ़वाना, क्योंकि आई हैड अ गुड कनेक्ट विद टीचर्स आल्सो, Okay. राइट? आई डेवलप दैट रिलेशनशिप विद देम। सो दे वर लाइक कि शुभम तो मुझे 10,000 रुपये दे, मैं बच्चों के नंबर बढ़ाऊंगा। आई वाज लाइक ठीक है। मैं बच्चों से 15,000 चार्ज करता था Okay. पर पेपर के, एंड आई यूज्ड टू बी लाइक कि बढ़ा देते थे। तो मेरे खुद मैथ्स में आए थे अराउंड 6 मार्क्स, एंड दैट Out टीचर of 100? 100 या, एंड दैट टीचर सेंड मी अ स्क्रीनशॉट सेइंग कि इसका क्या करना है। मैंने कहा सर पास कर दो। आई थॉट ही विल डू 36 और 46 समथिंग लाइक दैट। उन्होंने 8 लगा दिया उसके आगे, तो इट बिकेम 86 आउट ऑफ 100, Oh. राइट? और मैंने शीट्स भी नहीं भरी थी, लाइक 3 शीट्स की थी मैंने बस उसमें। तो काफी अच्छे लेवल का हाँ हाँ कोऑर्डिनेशन था टीचर्स के एग्जैक्टली। साथ. एंड इट वाज ऑल लाइक सीनियर पीपल। पहला था कि जितने भी टीयर 3 कॉलेजेस है ना इंडिया में, इनका ना सब कुछ सिस्टम वो है, सिस्टमैटिक है पूरा पूरा। तो अगर आप कहीं से चेंजेस करते हो तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। तो टीचर किसी के पास भी एक्सेस है, वो किसी भी टीचर का खोल के कर सकता है। Okay. हमारे बाद वो सिस्टम चेंज करना पड़ा उनको, क्योंकि बहुत बड़ा स्कैम निकला था निकल के। तो उन लोगों ने फिर हर चीज़ पे अलर्ट लगा दिया। Okay. कोई भी टीचर कुछ भी चेंज कर रहा है सिस्टम के अंदर, तो वीसी विल गेट अलर्ट Okay. कि ये क्यों चेंज हुआ है, एंड देन द टीचर इज आंसरेबल टू वीसी। कि ये क्यों कर रहा था? हाँ क्यों किया। तो थर्ड ईयर के बाद सब कुछ कम्प्लीटली चेंज, नो मोर अटेंडेंस, नो मोर मार्कशीट के नंबर बढ़ाना, सब कुछ। एंड आई वाज लाइक ओके रेस्ट हो गया सब कुछ। बट अगेन इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। उसके बाद वी स्टार्टेड डूइंग पार्टीज एट अ बिग लेवल। कॉलेज में ही? कॉलेज में ही। तो हम लोग के लिए नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा किया था। इसमें अराउंड 12 कॉलेज इन्वॉल्व थे, Okay. IMIT से लेकर शारदा वगैरह सारे लोग, एंड ड्यू IPU वगैरह ये सब भी थे। एंड वी डिड अ ट्रिप टू गोवा। Okay. तो वी बुकड अराउंड 4 bogies ऑफ ट्रेन, Oh. एंड दे वर लाइक क्लोज टू इफ आई से 800 पीपल इन इट, अच्छा. पूरा सबको भर भर के। एंड वी मैनेज दैट। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट होल ट्रिप, हाउ टू मैनेज Big. big party or something like that, right? And with around like somewhere around 20-25 people, Oh. I was managing them, and then they're managing the crowd, Crowd. right? And all the functionalities, जैसे कहीं ले जाना है सबको, टूर कार्स बुक करनी है, सब So कुछ, this became a event management event kind management of a thing. thing. Then I became bored. Okay. इससे भी बोर हो गए. वैसे ही बोर हो गए, right? So then सब पे happened, then stock पे ऐसे करके। So how is the team like for StockPay? कौन कितने founders है? उनके बारे में कुछ let's discuss about this. So we are two founders, me and Yash. We both met in the freshman year of the college. Started building College से products. साथ ही. Yeah. So I think सब पे भी उसके साथ ही था. Then we did a lot of small project also. And then we used to roam around all over India. Like we used to go and हम ट्रेन में जाते थे and sleeper ट्रेन होती थी, टिकट्स नहीं मिलती थी, तो वहीं लेट जाते थे. So this is usual traveling or for Through hackathons and stuff, business plan competitions, stuff like that. So सप्पे के लिए सप्पे was a new product like completely, and so we got a
we won many awards, say 3M Young Innovation Challenge, in hackathon? in hackathon. The 3M Young Innovation Challenge is a global event. ठीक है. So in India, we were the finalists. So what मतलब कैसा कल्चर या कैसा एनवायरनमेंट होता है हैकाथॉन में? Mostly, if you are from Ivy League, if you're on IIT and ITs, you will get a lot of good people attention. Right? अच्छा. लोग आपको बहुत भाव देंगे. Okay. And if you are not from a credible background, then they will consider like ये तो ऐसा ही है. अच्छा. Is it कि आपका मतलब टैलेंट या आपका एक्सपर्टीज कितना है? No, it doesn't work like that. ऐसा नहीं अच्छा. होता. Even in investment also, if you go and seek investment, तो क्या होता है कि people first ask you कि कौन से कॉलेज से हो. राइट. Right? IIT, NIT. Now a lot of firms हाँ, डिस्गाइज करती हैं कि हाँ हम अलाउ करते हैं सारे फाउंडर्स को. ऐसा नहीं होता. जिनके मैनेजिंग पार्टनर जनरल पार्टनर्स आईवी लीग से आए होते हैं वो आईवी लीग ही प्रेफर करते हैं. ओके. सो अगर मैनेजिंग पार्टनर आईआईटी दिल्ली का है तो वो आईआईटी को ही प्रेफरेंस देगा सबसे ज़्यादा. तो आई फेस अ लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म ओवर दैट पार्ट. सब पे के लिए हम लोग रेस कर रहे थे इवन दो वी डिडंट नीड इट, बट एक फैसिनेशन था कि रेस करना है वैसा. वी गॉट रिजेक्टेड क्लोज टू बाय 200 VCs in India. अच्छा. Right. These VCs over time became my friends and now are investing into my. मतलब आप बार-बार आ रहे हो, ले लो. हाँ, exactly. So I always say this thing to new people also कि it's not the first company that you build, even for first time entrepreneurs also, right? And it won't be your last. Right. आज नहीं इन्वेस्ट कर रहे, कल नहीं करेंगे, परसों नहीं करेंगे, कभी तो करेंगे. और नहीं करेंगे तो it's a relation that you have maintained, right? I'm a very relation oriented person. मुझे वो ट्रांजैक्शनल वाली चीज़ समझ नहीं आती है कभी भी. And if you go in Mumbai, so different cities also, if you want to have a loyal base, talent base, you have to go to Gujarat. गुजरात के लोग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लॉयल होते हैं. If you go for a base जो हाई प्रेशर में काम कर पाए, go to Mumbai. मुंबई. Right. If you want mix of all the things, come to Delhi. Gurgaon. Right. And सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शनल लोग मुंबई के होते हैं, सबसे ज़्यादा रिलेशनशिप ड्रिवन गुड़गांव और दिल्ली के होते हैं, नोएडा के होते हैं. But they lack the drive. Right. And सबसे ज़्यादा बिकॉज आई गेस वो ट्रांजैक्शनल वैल्यू नहीं है. एग्जैक्टली. तो वो ड्राइव भी नहीं होती क्योंकि कुछ अचीव नहीं करना है सच. राइट. एंड सबसे ज़्यादा टेकी चाहिए स्क्रैच से स्टार्ट करना, गो टू बैंगलोर. राइट. हैदराबाद डजंट कम इन अभी तो, बट विल हैव. सो वी हैव पीपल फ्रॉम ऑल ऑफ दिस कंट्री. माय होल टेक टीम इज गुजरात पीपल. राइट. माय होल एग्जीक्यूटिव लीडरशिप टीम है जो, सो वी हैव अराउंड 5 पीपल. ठीक है. हेड ऑफ ग्रोथ, हेड ऑफ प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, राइट, HR, ये सब मुंबई के. They know how to work in that manner. So you're operating out of Mumbai. We operating from. So we started from Delhi. ठीक है. The company is still registered in Delhi. Then we went to Bangalore. ठीक है. तो बैंगलोर में यश काम करता था. ओके. And I only had like 2500 rupees. ठीक है. सब कुछ खर्च हो गया था या so हमारे पास डेप्थ थी बहुत ज़्यादा. तो जो पैसा पिछले स्टार्टअप से आया था, we used it to repay all our debts. क्योंकि डैड के टाइम में बहुत सारा हॉस्पिटलाइजेशन बिल वगैरह के हो गया था. I had 2500 rupees. I called him. I said कि okay, I'm coming to Bangalore. Let's see. तो अभी स्टॉक पे नहीं हुआ नहीं हुआ था. इट्स पोस्ट गेटिंग एक्वायर्ड. मतलब पिछला वाला जो था वो वाला फेज चल रहा था. हम लोग फिगर आउट कर रहे थे क्या करना है, व्हाट टू डू नेक्स्ट. तो ही कॉल्ड मी, सेड कि बैंगलोर इज अ गुड प्लेस, आजा. मैं कहा ठीक है. आई हैड 2500 एंड व्हाट ही वाज डूइंग देयर. ही वाज लीडिंग ऑपरेशंस एट Zoho. ओके. Right. So our experience in building products and managing people helped a lot of us to get good roles and good company. So I still remember I had a placement from Amazon for 32 LPA, ओके. but I dropped it. Amazon India. Amazon, yeah. तो SD2 का था शायद. ओके. So I dropped it. I had another offer for 12 LPA from a product-based company, but I didn't want to join a fancy company ऐसा like that. ना MNC नहीं जाना था बिल्कुल भी. Culture is very boring over there. So I went to Bangalore. हमारे पास अब रहने के लिए जगह नहीं थी, तो we rented a small 1 BHK apartment. It's very small, like इसका half होगा. And only one room. हमने मैट्रेस नीचे बिछाए हुए थे, उसी पे काम करते थे, सोते भी वहीं थे. एंड देन इनिशियली स्टार्ट हुआ, आइडिया फॉर्म होना स्टार्ट हुआ. कुछ एंजल्स थे जो पहले से जानते थे. वी प्रेजेंटेड देम, देखा कि इट्स अ गुड थिंग. टॉक टू अ लॉट ऑफ कस्टमर्स, 500-600 पीपल, कॉल्ड देम, अंडरस्टैंड देयर क्वेरीज, रोल्ड आउट अ पहला वर्जन, रेज्ड राउंड. दैट्स वेयर माय डैड आल्सो पास्ड अवे. एंड फिर भी डिसाइडेड कि ओके, तो हमने एग्जीक्यूटिव टीम बनानी स्टार्ट कर दी थी वहीं पे बैंगलोर में. एंड बिकमिंग वेरी एक्सपेंसिव. एंड बीइंग अ दिल्लीहाइट, खाना बहुत बेकार था वहाँ का. राइट. सो आई ऑलवेज से दिस टू एवरीवन कि सब पूछते हैं कि बैंगलोर शिफ्ट क्यों हुए. राइट. बहुत सिंपल रीजन है, खाना अच्छा ही लगा मुझे.
So I was eating idli and sambar all like 1 month 2 months. I was like, "ये fucked up है तो ये नहीं हो पाएगा इससे." मैनेज नहीं हो पाएगा. Yeah. And second was it's become very expensive कि team भी अगर आ रही थी relocation cost, so it's getting through the roof. और traveling time तो Bangalore is famous for that. So we thought कि यार we have a home in Mumbai. अगर किसी को accommodate भी करना है तो वो घर इतना बड़ा है कि सब लोग आ जाएंगे, right? And then we have a place also. हम लोग WeWork के Startup India प्रोग्राम में थे. ठीक है. तो WeWork सेलेक्ट करता है साल में कुछ कंपनीज को जो अच्छी होती हैं एंड गिव देम अ स्पेस. तो मैं कहा ओके ये मिल रहा है, लेट्स डू दैट. एंड देन ओवर टाइम व्हेन और इन्वेस्टमेंट आई कंपनी के अंदर तो इन्वेस्टर्स भी मुंबई के मिले, तो दे स्टार्टेड ऑफरिंग देयर ऑफिस स्पेसेस ओके. कि ये लो फ्री में रख लो. हाँ. तो हमने वही सेटअप कर दिया फिर सब कुछ. तो नाउ इट्स लाइक बीन 2 years वी आर सेटिंग ओवर देयर ओनली. बट नाउ आई थिंक कि इट्स द राइट टाइम टू कम बैक टू दिल्ली, ओके. राइट? क्योंकि इट्स बिकम वेरी हेक्टिक, एक महीना ट्रैवल करके जाना. हाँ, राइट. सो वाइल बिल्डिंग स्टॉक पे क्या अभी तक का मतलब व्हाट हैज़ बीन द बिगेस्ट चैलेंज और द हार्डेस्ट मोमेंट जो या द मोस्ट लोएस्ट पॉइंट एज ऑफ नाउ दैट यू थिंक कि अब हम इससे बाहर आ गए हैं, अब तो सब कुछ मैनेज कर लेंगे? I think it's the time when most of our funding ran out and we didn't know कि next पैसा कैसे जाएगा. I think that's the time कि आप सोचते हो कि अब close करनी पड़ेगी, bankruptcy file करनी पड़ेगी, right? You have to let people go. ओके. So एक ये time कब कितना मतलब स्टॉक पे स्टार्ट करने के कितना टाइम 1 year 1 year. 1 ईयर बाद? So but over time 2020 हाँ 20. 20 But over time you realize कि it's a part of the cycle, right? Every time सब startups में होता है. One of these thing was हम लोगों ने अपनी टीम 2 बारी पूरी फायर करी है. Like पूरी complete team. क्या रीजन की वजह से? So one was we were bad at hiring executive team. ओके. तो उसकी वजह से क्या हुआ था कि जो बाकी के एम्प्लॉयज़ थे वो डिमोटिवेट हो गए थे. ओके. एंड दैट एग्जीक्यूटिव टीम 2 or 3 people मोस्टली दे क्रिएटेड अ वेरी बैड कल्चर, ओके. राइट? अब हमारा एज अ फाउंडर्स वी लुक फॉरवर्ड टू प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, राइट, एंड फंड रेजिंग, right? Building a venture company involves all these 3 things, and rest we leave it to the executive team to figure it out, right? Over time it become very obvious कि लोग छोड़ के जा रहे हैं. ओके. तो हमने जब एग्जिट इंटरव्यू लिए कि क्यों हो रहा है तो दे ऑल सेड द सेम थिंग कि इट्स बिकमिंग वेरी बैड ओवर हियर. तो वी मेड अ कॉल कि ओके प्रोडक्ट भी नहीं चल रहा, प्रोडक्ट भी स्केल नहीं हो रहा था, सबसे बड़ी बात ये थी. एंड सेकंड कि लोग भी छोड़ के जा रहे हैं. तो दिस इज नॉट द कंपनी आई वांटेड टू बिल्ड, राइट? आई वांटेड पीपल टू स्टे. प्रोडक्ट तो फिगर आउट कर लेंगे, हाँ, टीम रहेगी तो वो भी चला लेंगे. एग्जैक्टली. सो आई कॉल्ड माय को-फाउंडर यश वन नाइट. आई सेड कि बॉस ऐसे तो फंडिंग भी चली जाएगी, कुछ बनेगा भी नहीं, एंड इट विल अ बैड थिंग and I don't want to do this ऐसे तो. So they go, what do you think? So being a CEO, it's my thing कि मुझे ही fire करना है सबको, right? So I went on a call with everyone one by one. I think that time it was like 25 people over there. ओके. And सबके साथ call. एग्जीक्यूटिव टीम 25 लोगों की No, थी? total overall. Total Executive तो 4 to 5. So went on a call one by one, said कि okay, we are removing everyone. We'll start stock pay from a very new stage. And we'll hire new people. If you still want to join, if you still want to stay, remain, please stay. नहीं तो you are happy to go. 1 month का severance देंगे आपको, ये सब. Most of the people did join us back, and some of the people left because बहुत ज़्यादा culture खराब हो गया था उस टाइम में. And second time पे हुआ था कि again our fault, we didn't hire the people, right? I think it's not about the people, it's the quality of the people that you hire, right? And being at an executive stage, it's your responsibility also. So I take upon me कि I hired bad people. And the third time was the way कि okay, now it's time कि अब stable होने लग गया है. Now we know how to hire quality people. Now it's good time. So one of the challenge for me as a young founder was कि how to hire someone senior. एग्जैक्टली. Right? इफ यू योरसेल्फ आर 22 or 23. Exactly. So क्या था कि मेरी average है 28 है पूरी टीम की. Everyone is like way senior in my role, right? And everyone consider you as a younger. And you need some experienced Exactly. people to run the show also. Yeah. So I just thought myself कि okay, let's keep the talent, the skills and everything aside, the experience aside. I'm also human, they are also human. हाँ. मैं कैसे efficiency पे काम कर सकता हूँ? Let's write those point down. I wrote that point down and I formalized it as a practice in the company. कि जो भी बंदा आ रहा है वो ये वाले trait तो होने चाहिए उसमें. Okay. So eventually it solved everything, right? Then we started hiring good people. so most of the time you just have to have a very deep call with yourself. अकेले बैठ के रूम में
कि what are you doing wrong, right? And most of the times the answer is in front of you. And now अगर कोई बहुत ज़्यादा senior आता है तो I don't look forward to the experience, nothing, skills, nothing. I see कि person कैसा है वो, right? How they fit in with Exactly, the exactly. team. And I always feel like कि a company is good with people, right? If someone go create a new company, जैसे जो लोग छोड़ के भी जाते हैं, they try to create their own venture now, Okay. right? So 2 people जिन लोगों को हमने हटाया था on the basis of performance, they created their own ventures. So it feel good, right? They come to you, they discuss idea with you, take your points. So at least now what we are creating is essentially more entrepreneurs, right? So I really wanted to build a culture like this. If people also go, they still remain, they still have the DNA of the team, क्योंकि ये build कर सकते हैं, इसको बना सकते हैं, and they're doing that. I think वो mindset अगर किसी में होता है टीम में ना तो it always drives you together. Exactly. So now if someone comes and say कि इसमें आप help कर दो, इसमें कर दो, even though they are not a part of the team, still do that because it's a culture that we have Because हम formed. दिल्ली से है, दिल्ली का है, exactly, non transactional relationship values वाला है. So I always say that they don't make a transactional thing. तो मैं एक sales team को ना advise कर रहा था, and they were very salesy, simple, right? Target है, पूरा करना है, हो गया. But problem क्या था, उनकी customer attrition बहुत ज़्यादा था. Okay. People were leaving, let's say 6 months के बाद, subscription renew नहीं हो रहा. तो I just taught them कि यार go with the relationship approach, and I asked the executive team कि इनका जो target होता है ना, fix it on a vesting side. जैसे ESOP वेस्ट होते हैं ना, शेयर वेस्ट होते हैं, वैसे आप इसको वेस्ट कर दो. इनका कॉम्पनसेशन बढ़ा दो. अगर 1 लाख आप वेरिएबल दे रहे हो तो 2 लाख कर दो, बट वेस्ट कर दो फॉर ओवर अ 4 मंथ और 5 टाइम मंथ फ्रेम थोड़ा सा लगा. कि कस्टमर को वैल्यू मिले, तो वो रिलेशनशिप फॉर्म हो, राइट? तो दे स्टार्टेड डूइंग दिस, दे स्टार्ट सीइंग रिजल्ट्स. प्रैक्टिसेस दैट आई लर्न फ्रॉम बुक्स आल्सो, राइट? एंड आई स्टार्टेड इम्प्लीमेंट दैट. मैं खुद में भी करता हूँ, कोई फाउंडर्स पूछते हैं तो उनको भी बताता हूँ. इफ इट वर्क्स आउट विद देम, इट्स गुड, राइट? Right. And that is one of my reasons कि I don't want to do an MBA also. Right? So after your Engineering, you I never are did MBA. okay. I got a ISB का वो recommendation का letter, but I didn't went to it. Right? I think there's no practical approach to it. हाँ. Right? It give you a good entry, right? If you want to go for, let's say, buy-in company, EY वगैरह में किसी में जाना, Deloitte वगैरह जाना, तो it give you a good push, good salary, everything is good. Over time, it's your skills and experience that defines you, right? So that is my approach. I'm saying कि कितना push कर सकते हैं अभी तक, but I'm happy with it right now, right? कभी जरूरत पड़ेगी तो वो push exactly. उस साइड से ले लेंगे. Exactly. But I think कि now I'm at the stage कि I'm fortunate enough कि a lot of good founders have been friends, right? ऐसे अंकुर डंजो का, आपका पेटीएम के विजय, आपका नीतीश नज़ारा एडवाइस करते हैं वो हमें गेमिफिकेशन पे काफ़ी टाइम. Okay. I've been in touch with all these people now. I see कि there is no relevance to MBA as of now because executive जो भी करती हैं, it's mostly driven by passion, if you say, right? कल को हमें कुछ स्टेप लेना है, वो यही है कि सही है कि गलत है, right? That's the thing I do. Right. So it was great talking to you, Shubham. काफ़ी चीज़ें समझ में आई how things are working with this, and thank you for taking out time. Thank you so much, Anurag, for writing me. Thanks.